जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सच्ची श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Ho. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Hari Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki आज हम दूसरा स्कंद भागवतम से
7वां अध्याय में से 6वां नंबर श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। धर्मस्य दक्ष दुहितर अजनिष्ठ मूर्त्यां नार। अच्छा, यू कैन रीड, या पढ़िए प्रभु, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड। अच्छा, साथ में पढ़ते मीन्स धर्मस्य दक्ष दुहितिर अजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपा प्रभावा दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देवस्य त्वङ्गप्रतनाद्रतितुं न शेकु। Translation: To exhibit his personal way of austerity and penance, he appeared in twin forms as Narayana and Nara in the womb of Murti, the wife of Dharma and the daughter of Daksha. Celestial beauties, the companions of Cupid, went to try to break his vows, but they were unsuccessful, for they saw that many beauties like them were emanating from him, the personality of Godhead. Purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. हालांकि तात्पर्य बहुत बड़ा है, देखते हैं हम थोड़ा इस बारे में जितना पढ़ सकते हैं। The Lord being the source of everything that be, is the origin of all austerities and penances also. Great vows of austerity are undertaken by sages to achieve success in self-realization. Human life is meant for such tapasya. With the great vows of celibacy or brahmacharya, in the rigid life of tapasya, there is no place for the association of women. And because human life is meant for tapasya, for self-realization, factual human civilization, as conceived by the system of Sanatana Dharma, or the school of 4 castes and 4 orders of life, prescribes rigid disassociation from women in the 3 stages of life. In order of gradual cultural development, one's life may be divided into 4 divisions: celibacy, household life, retirement, and renunciation. During the first stage of life, up to 25 years of age, a man may be trained as a brahmachari under the guidance of a bona fide spiritual master, just to understand that woman is the real binding force in material existence. If one wants to get freedom from the material bondage of conditional life, he must first get free from the attraction for the form of woman. Woman, or the fair sex, is an enchanting principle for the living entities, and the male form, especially in the human being, is meant for self-realization. The whole world is moving under the spell of womanly attraction, and as soon as a man becomes united with a woman, he at once becomes a victim of material bondage under a tight knot. The desires for lording it over the material world under the intoxication of a false sense of lordship specifically begin just after the man's unification with woman. The desires for acquiring a house, possessing land, having children, and becoming prominent in society, the affection for community and the place of birth, and the hankering for wealth, which are all phantasmagoria or illusory dreams, encumber a human being and is thus impeded in his progress towards self-realization, the real aim of life. यहाँ पे मैं लास्ट एक उधर का सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, हालांकि तात्पर्य लंबा है। One who does not know alleges foolishly that Lord Krishna enjoyed women in his Rasa Leela in Vrindavan,
or with his 16,000 married wives at Dwarka. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapatantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayati krim yat kripatamaham vande Shri Gurum Deenatarinam Shri Chaitanya Ishwaram Paramanandhe Madhavam. हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और मैं आपसे क्षमा व्यक्त करता हूं कि जब मुझे ये सेवा मिला था मैं 2 मंगलवार नहीं आ पाया। हालांकि एक मंगलवार तो मैं मुंबई में नहीं था और दूसरे मंगलवार में जब दामोदर सखा बहू रिक्वेस्ट किए थे मैं मेरे भौतिक कार्य में मैं तो उलझ चुका था। इसलिए कभी कभी मन को तोड़ के, मन के विचार को तोड़ के प्रयास करके भक्तों के संग में आना पड़ता है।
बोलते ना साधु बोलते कि बुलाते आ जाओ मंदिर में आ जाओ, बोलते थोड़ा काम है काम मतलब लस्ट, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब उसके लिए वो वर्ड शब्द काम भी उसके लिए आया है। लस्ट मीन्स और कितना मिला तो भी कम है। पर जैसे भक्तों के संग में रहते हैं तो कितना भी हम प्रयास करते हैं वापस हमारे भौतिक जीवन में जाने, तो साधु भक्त लोग खींच के लेते, छोड़ो छोड़ो आ जाओ, कितने जन्म जन्मा दे। तो आज भी कैसे कि भक्तों के प्रेम और उनकी लगाव से मुझे यहाँ पे आकर्षित किया गया, और ये आकर्षित की वजह से मेरे हृदय के शुद्धिकरण हो जाता है। तो मैं हमेशा हृदयपूर्वक हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा कि आप जैसे गुरु भाई और गुरु बहन और गुरु माता की कृपा से इस श्रीमद् भागवतम की कथा की जो चर्चा है मुझे अवसर मिल रहा है। तो सभी गुरु परंपरा, भगवान श्री कृष्ण, परम देवोत्तम पुरुष श्रीमती राधारानी और सभी भगवान की निज पार्षद के आशीर्वाद से हम ये कथा वापस पुनः जागृत करते हैं। सो जैसे हमें वो अवसर मिला था, अगर किसी को याद है हमने कौन से अवतार में भगवान का समाप्त किया था? कपिल मुनि। भगवान श्री कपिल मुनि के अवतार में हमें इस कथा को समाप्त किए थे। तो ये जो चर्चा ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के विविध अवतारों के बारे में बता रहे थे। ऐसे हमारे पास कोई क्षमता नहीं है कि भगवान की हर लीलाओं के बारे में बताने, हम इतने तुच्छ और अणु हैं। पर फिर भी इस रसामृत सिंधु के एक बिंदु के बारे में, एक बिंदु उसके बारे में हम लेके थोड़ा चर्चा करते। तो आज हम जब ये श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ रहे थे तो तभी भगवान के एक अवतार के बारे में हमने विचार किया कि इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो श्लोक में वापस दोहराता हूँ, धर्मस्य दक्ष दुहितिर अजनिष्ठमूर्त्यं नारायणो नर इति स्वतपा प्रभावा दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्व अंगप्रतहान् ग्रथितुं न शेकु। ये भगवान श्री ब्रह्मा जी भगवान के वो अवतार के बारे में बता रहे जब भगवान जुड़वे रूप में आते हैं। जुड़वे रूप में आते हैं। कोई बोल सकता है कौन सा अवतार है? भगवान जुड़वे रूप में आते, और वो जगह आज भी है। विच इनकारनेशन? नर नारायण। नर नारायण। भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को बताते कि तुम नर हो और मैं नारायण। इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा जैसे ये कथा बढ़ते जाएगी। देखते हैं कथा कितना लंबा जाएगा। तभी मैं ये अवसर मिला तो मैं बताऊंगा भगवान कृष्णा इसका उल्लेख भगवत गीता में क्यों करते हैं। ये जगह आज भी लोग बोलते कि बहुत उत्साहपूर्वक और इच्छा रखते कि एक बार हमारे जीवन में वो जगह जाना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन है, पर सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ये जन्म में, अगर ये जन्म में एक बार मुझे वो जगह पे मिला तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। कौन सा है वो जगह? बद्रीनाथ। बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम। निकट गंगा बहती निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। बोलते कि चार धाम। हालांकि चार धाम इस भारत में ऊपर की क्षेत्र में बद्रीनाथ है और दक्षिण क्षेत्र में रामेश्वर और वेस्टर्न साइड में द्वारका, और इस तरफ कौन सा है? जगन्नाथपुरी।
भगवान की स्नान यात्रा अभी समाप्त हुआ है और सभी भक्तों के उत्साह है जगन्नाथ हमें बुलाएगी इस रथ यात्रा के लिए। ये एक चार धाम, महाचार धाम है, पर हिमालय में, हिमालयस, ये सिर्फ भारतवर्ष में हिमालयस, क्योंकि हमारे पूर्वज और शास्त्र में उल्लेख किया है, हमारे कितने भी बड़े महासंत महापुरुष, बड़े बड़े राज ऋषि जब अपने सर्व त्याग कर देते हैं तो हिमालय की तरफ चलते हैं। क्यों? अपने आध्यात्मिक में ज़्यादा प्रगति करके भगवान की जो असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए एकांत भक्ति में सिर्फ हिमालय की तरफ जाते हैं। और उस हिमालय में चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ये चार धाम है और उस चार धाम में एक प्रमुख धाम है बद्री का आश्रम। तो ये जो अवतार आज ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि भगवान त्रेता युग में धर्म और मूर्ति देवी, ये दोनों बताते कि दाम्पत्य, जो पति और पत्नी धर्मा और पत्नी मूर्ति देवी, उनके गर्भ से निकले थे भगवान के अवतार नर नारायण। अभी भगवान की ये अवतार का क्या उद्देश्य था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की जो अवतार है इसका कोई उद्देश्य रहता है। वो हमारे जैसे जन्म नहीं लेते। जन्म कर्मा चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। उनका जन्म, उनका कार्य, उनका जो भी कर्तव्य है, अगर जो व्यक्ति उसके बारे में सततम चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाने की क्षमता पैदा होती है। सोच लीजिए, इतना विस्तार पूर्वक और इतने गहराई है। भगवान का जन्म हमारे जन्म के जैसे नहीं है, उनके कार्य हमारे कार्य। सिर्फ जन्म कर्म चमे दिव्यम, हर अवतार ये दिव्य है। हालांकि दिखने के लिए हमारे जैसे ही है, पर इट इज वेरी ट्रांसेंडेंटल। समझ लीजिए, यही वैदिक धर्म है। हमारे लोग जो मंदमति मंद बुद्धि है, वो समझते हैं कि ये कोई कार्य है, इसको कोई भगवान बोलते हैं। ये सिर्फ साधु और ग्रंथों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की जो कार्य है, इसके बारे में जो व्यक्ति हमेशा चिंतन करते रहता है, उसका जन्म कर्म, उसके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलने के लिए ये बड़ा महत्व चीज़ है। इसलिए भगवान हमेशा यहाँ पे दिव्य रूप में आते हैं, ताकि जो व्यक्ति मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। साधु लोग का एक ही उद्देश्य है, एक जगह पे बैठ के एक दूसरे को बताते, तुम्हें पता है कृष्ण कथा क्या है? तुम्हें पता है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा क्या है? तुम्हें पता है भगवान नरसिंह देव की क्या कथा है? हालांकि उन्होंने 100 बार 1000 बार सुना होगा, पर उसमें जो रमन्ति चा, भगवान की जो दिव्य लीलाओं के बारे में जो रोमांचक, जो उत्साह, जो रुचि आ जाता है, वो इस भौतिक दुनिया में जितने भी इंद्र तृप्ति से जो रुचि आता है, उसके बोलते थे कि अनगिनत रूप से ज़्यादा है। और उसकी जो रुचि की बता दी सीमा ही नहीं है। वो जो व्यक्ति उसको चखता है, उसका टेस्ट करता है, वो व्यक्ति को ही पता है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
ऐसे संग में आना चाहिए जो व्यक्ति इसके बारे में रुचि रखता है। अगर कोई चीज़ को हमें रुचि प्राप्त होना है तो वो व्यक्ति के साथ संग करना पड़ता है। तो उसी तरह ये सिर्फ भक्तों के द्वारा वो हमेशा वो चर्चा, आज भी हम देखते हैं, अगर आप अयोध्या में जाएंगे या नैमिषारण्य में जाएंगे, वहाँ पे भक्त लोग, किसी तीर्थ स्थल में जाओ, वहाँ पे वैष्णव ऐसे रहते हैं जो हमेशा एक दूसरे से भगवान की लीलाओं के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। उसकी आस्वादन, जो रियलाइजेशन अनुभव होता है उनको ही पता है। तो उसी तरह भगवान नर नारायण धर्म और मूर्ति के सुपुत्र, दोनों पुत्र जुड़वे पुत्र होके जन्म लेते। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था, तपो दिव्यम पुत्र येन सत्वम, तपो दिव्य पुत्र येन का सत्वम। ये ऋषभदेव का टीचिंग था। उसी तरह नर नारायण ऋषि का एक ही उद्देश्य था, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तपस्या। You have to perform austerities। अगर मनुष्य जीवन में हम तपस्या नहीं करेंगे तो क्या हम पशु पक्षी के जीवन में करेंगे? अगर हम अभी विचार विमर्श अथात ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में अभी नहीं करेंगे, क्या पशु पक्षी के जन्म में करेंगे? प्रभुपाद एक सिंपल लॉजिक बोलते हैं, ये वीडियो में सुना था मैंने। प्रभुपाद, यू आर ह्यूमन बीइंग, आप लोग मनुष्य हो। आपके पिता बोलते गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, टेक एजुकेशन। आपके पिताजी बोलते कुत्ते की माँ ये नहीं बोलती, या बिल्ली के माँ जाओ, गेट अप, गो टू स्कूल, गो टू। दैट लाइफ इज नॉट मेंट, वो जीवन, वो जन्म उसके लिए नहीं है। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अभी चांस है। नाउ इज द चांस टू इंक्वायर, हु एम आई, मैं कौन हूं। जारो अमर तापत्राय कि अमर जरा अमर तापत्राय। नाउ इज द टाइम टू इंक्वायर, अभी समय है पूछने के लिए मैं कौन हूं। ये क्यों, ये थ्री फोल्ड आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, मुझे क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मृत्यु के बाद मैं कहां जाने वाला हूं? उसके बाद मुझे क्या जन्म मिलने वाला है? अभी मुझे ये शरीर है, दूसरा जन्म क्या है? उसको कुत्ते के जन्म, बिल्ली का जन्म, पक्षी के जन्म क्यों मुझे नहीं है, और उसको क्यों मनुष्य जे? अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये था उद्देश्य नर नारायण तपो दिव्यम पुत्र के ये न सत्वम। अभी का टाइम है इंक्वायर। इसलिए बचपन में ही ये ज्ञान धर्म और मूर्ति ने उनको दिया था, बेटा तुम्हारा उद्देश्य है तपस्या। इसलिए उन्होंने अवतार भी हिमालय में लिया था। दोनों इतने घनघोर तपस्या कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि दिस इज भगवान जब आते हैं तो खुद के जीवन के उदाहरण से बताते। पर मूर्ख व्यक्ति एक सोचता है कि ओ भगवान को भी कर्म चक्कर से निकलना है ना, इसलिए उनको तपस्या है। दिस इज स्टूपिडिटी बोलते, प्रॉब्लम बोलते इज फूलिशनेस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण सिंपल है, जब हम सभी केजी के स्टूडेंट थे, हाथ हिलता नहीं, पेंसिल भी पकड़ नहीं सकते थे, सबको पता है, सभी उसमें पेंसिल भी पकड़, बेटा पेंसिल ऐसा पकड़ो, ऐसा ऐसा, वो कैसे उल्टा पकड़ दे, तो तभी क्या करते, पिताजी या माता उसको पेंसिल को पकड़ लेते, बच्चे के हाथ पकड़ते और लिखते ए, ऐसा लिखना चाहिए बेटा ए, और उसका बी। तो बालक इतना नादान रहता है तो पीछे मुड़ के बोलता है पापा आपको ABCD नहीं आता है, आप भी ABCD सीखते हो? तभी बोलते बेटा ABCD मुझे आता है, पर तुम्हें सिखाने के लिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ता है। उसी तरह भगवान जब अपने जीवन के तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को इस कर्म चक्कर से निकलना इसलिए तपस्या करना। लॉर्ड टीचर्स थ्रू हिज ओन एग्जाम्पल। एक मनुष्य जीवन होके कैसे अपना जीवन को चलाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा क्यों अपने एक पत्नीव्रत और एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन क्यों लिए? क्योंकि उनको बताना था कि अगर इस मार्ग से चलोगे यू विल रीच द प्लैनेट ऑफ वैकुंठा, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल सकते हो। इसलिए कभी कभी भगवान को
अपने उदाहरण के द्वारा सिखाना पड़ता है। तपो दिव्य पुत्र के न सत्वम, इसलिए वो तपस्या के रूप में कर रहे थे, कंटिन्यूसली तपस्या। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ब्रह्मचार्य न गुरुकुले। आजकल तो कोई प्रिंसिपल है ही नहीं है, वर्णाश्रम धर्म को हटा दिया गया है, कौन देखता भी कहाँ है ब्रह्मचार्य। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए सोसाइटी, ये पूरा सोसाइटी में बोलते थे इट इज़ लाइक टॉपसी टर्वी मतलब सब खिचड़ी बन चुका है, कुछ भी हो रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मचार्य भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है, और आश्रम भी नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपना अपना मन मौज है, अपने अपना ही करते हैं। उसके वजह से क्या हो जाता है, पूरे सोसाइटी इज टर्ब्यूलेंट। लोग सोच रहे थे पहले के टाइम में जब ये वैदिक शास्त्र का अध्ययन होता था, जब गुरुकुल सिस्टम होता था, गुरुकुल जहाँ शिष्य अपने गुरु के नीचे रहकर शास्त्र का अध्ययन और बाकी वैदिक धर्म के जो शास्त्र का अध्ययन करते थे, और बाकी भूगोल और जो भी मैथमेटिक्स वो भी करते थे, पर गुरु की आज्ञा के नीचे करते, तो उसको लोग समझने लगे ये बहुत पुराना टाइप का कल्चर है। इसलिए पाश्चात्य देश वाले उन्होंने आके बोला ये गुरुकुल सिस्टम इज वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें कोई आप इकोनॉमिक बड़ा आपकी जो बोलते ना, ये जो सोसाइटी प्रगति नहीं होगा। साइंस या बोलते कि इकोनॉमिक्स या किसी टाइप के अर्थशास्त्र में आप लोग कोई प्रगति, भारतवर्ष बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए हमारा एजुकेशन ले लो। व्हाट इज एजुकेशन? सिंपल, कोई ब्रह्मचारी कुछ नहीं है, एक साथ पढ़ाई करो, इस दुनिया में कुछ भी यही सिलेबस करो। ये शास्त्र क्या है, वो पहले जमाने में कोई देखा था क्या? कौन सा संस्कृत का शब्दों का भी उच्चारण। इंग्लिश इज द टॉप मोस्ट लैंग्वेज, जो इंग्लिश में बोल सकता है वो बड़ा उत्तम व्यक्ति है। गया अपना पूरा सोसाइटी, फिर दिस व्हाट हैपेंस। इसलिए ये सब कैजुअलिटी तो निकलना ही है। बाद में हम लोग बताते कि उसको वो गवर्नमेंट बराबर से ध्यान नहीं देता है, वो लोग, ये हमारा ही खुद का ही वजह से ये सब सोसाइटी खराब हुआ है, हमारा नेग्लिजेंस। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मम भागवतम इह दुर्लभम मानव जन्म। प्रहलाद महाराज बोलते कौमारम एज में एक विद्यार्थी को ब्रह्मचार्य प्रिंसिपल सिखाया जाता है। व्हाट इज ब्रह्मचार्य? अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना। क्या उतना सुलभ है? इट हैज टू बी ट्रेन्ड। मातृषु परधारेषु एवरी वुमेन इज माई मदर। ये बोलने के लिए हम जब इंग्लिश में था हमारा टेक्स्ट बुक में, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट इज जस्ट अ वर्बल, डू यू रियली मीन इट? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुआ है। जब मन और इंद्रिय को वो गुरुकुल में, गुरु की आश्रय में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बेटा पहले मन और इंद्रिय को काबू में रखना सीखो। गोस्वामी, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए आहार, और कैसे अपने ये मन जहाँ भागता है उसको खींचने। आप जो व्यक्ति को शुरुआत में ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है वो बाद में क्या ट्रेनिंग करेगा? जब बेसिक में राड़ा है, बोलते शुरुआत में राड़ा, बेसिक में उसका फाउंडेशन ही बराबर नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ खड़ा रहेगा? जब ब्रह्मचार्य के ट्रेनिंग ही नहीं है तो गृहस्थ आश्रम कहाँ ठहरेगा? और जब गृहस्थ आश्रम ही बराबर नहीं है तो वानप्रस्थ कहाँ रुकेगा? और वानप्रस्थ ही नहीं है तो सन्यास का छोड़ ही दो। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू ट्रेन। इसलिए गुरु या माता पिता गुरु होते कि पुत्र ये समझो कि पहला है तुम्हें ये रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि किसी को भी देखो मन लग गया, मौज लग गया, चलो मजा करो। नो, यू आर रेस्पॉन्सिबल।
इसलिए नर नारायण ऋषि पहले ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, छोटे से तपस्या का उनको परिश्रम ये दिया गया था। भगवान ये सिखाना चाहते थे नर नारायण के रूप में। फर्स्ट इज टू ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। वो तपस्या करते 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 तभी ये मन और इंद्रिय को, किसी को भी अच्छा लगता है जाप करने के लिए? नहीं। अरे मन बोलता है कि यार रोज एवरी डे इज अ स्ट्रगल। ये मेरा ही कहानी बताता हूँ, मैं, आप लोग तो बड़े महान, मैं खुद एवरी डे सुबह उठ के वापस याद करना पड़ता है, कल तो जाप अच्छा होता, आज वापस जाप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कल के जाप कैसे आज, वी आर नॉट रीच्ड, वो स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए ये तपस्या है, रोज मन को याद करना, रोज उसको याद करवाना, क्योंकि जन्म जन्मांतर से उसको यही श्रृंखला लगी है। तो इसलिए नर नारायण जब वो तपस्या के लिए, इसलिए भगवान के लिए ये अवतार लिए थे। तपो दिव्य पुत्र के ये न सत्वम, भगवान नर नारायण तपस्या के लिए बताने के लिए अवतार लिए थे। तो ये इसमें भगवान की दो है, एक तपस्या सिखाने के लिए मनुष्य जीवन को, और दूसरा था एक राक्षस का वध करने के लिए, सहस्र कवच। वो मैं बताता हूँ। पहला श्रीमद् भागवत में उसमें उल्लेख आता है, वही बद्रिकाश्रम में जब नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा प्रयास करता है, ज़्यादा तपस्या करता है, ज़्यादा एकदम ध्यानपूर्वक एकांत भक्ति करता है, एकाग्रता, तब दूसरे लोग को एकदम बताते कि डाउट आ जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। और ज़्यादा से ज़्यादा किसको ज़्यादा डर आ जाता है? इंद्र को। इंद्र स्टार्ट्स फियरिंग, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इतना तपस्या करे, क्योंकि उसका मन हमेशा विचलित रहता है। बोलते ना, हमेशा जो व्यक्ति के पास ज़्यादा दौलत रहता है तो हमेशा सोचता है, उसको डर ही रहता है, वो तो चोरी नहीं करेगा, अरे वो ही मेरे तरफ क्यों देख रहा है, लगता है मेरा दौलत के ऊपर देख रहा है, उसको आँख है। तो बोलते ना, ज़्यादा रहना उसको ज़्यादा विचलित है। हैप्पी इज द मैन हु डजंट हैव एनीथिंग, इसमें कोई है ही नहीं। एक छोटा सा भिखारी रहेगा तो उससे क्या मिल सकता है, जो मिला रोज का उसको रोटी और मिला उसके लिए कृतज्ञ है। पर जो व्यक्ति के पास बहुत सारा रहता है तो तभी Z सिक्योरिटी, Z प्लस सिक्योरिटी, Z प्लस प्लस सिक्योरिटी, Z प्लस इंटू स्क्वायर सिक्योरिटी, सो फियरफुल। क्यों? जितना ज़्यादा वो आ जाता है वो सोचता है एक दिन तो खींच, वो तो स्वाभाविक है। वो हमेशा सोचता है वो मेरा खींचेगा, हमेशा वही प्रयास करता है कैसे मैं टॉप नंबर पोजीशन में रहूँ, यही दे, हाँ नहीं मैं बचूँ, यहाँ से बचूँ, यहाँ से बचूँ, कितना लूप होल्स बचाना चाहता है, यहाँ से होल, यहाँ से होल, और कोई भी ज़्यादा उसको गिराना चाहता है, वो नहीं, वो फर्स्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी, हमेशा चिंतित ही रहता है। हालांकि स्वर्ग में रह के अप्सरा लोग नाच रहे, फिर भी इंद्र को यही टेस्ट रहता है, उसमें एंजॉयमेंट ही नहीं है। हमेशा नीचे देखो, धरती पे कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है, बोले कोई तपस्या कर रहा है, हाँ क्यों कर रहा है, पहले फाइंड आउट व्हाट इज द मोटिव। यही है भौतिक आसक्ति, मतलब यही है, जितना मिला उसमें संतुष्टि नहीं है, चिंता और चिंता में रहता है, और वो डर भी रहता है, लैमेंटेशन एंड एंकरिंग, और चाहिए, और ये डर है कि मेरा कोई ले जाएगा। ये लोग इसलिए कर रहे तपस्या, हाँ मेरा जगह लेने के लिए, कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी। बहुत ही चीज़ कभी आनंद नहीं देता है। तो इंद्र वॉज फियरिंग, अरे अच्छा दो एक भी नहीं, दो व्यक्ति, तभी बोलते प्रज्ञा भी ये हो जाता है, निकल जाता है। हालांकि उनको बोला भी होगा कि वो भगवान के अवतार है, वो अरे वो छोड़ो साधु लोग हैं, कुछ तो है इसका, तो तुरंत क्या करते हो, What they do? इंद्र क्या करता है, उसका सबसे बड़ा चालाक ये क्या रहता है, अस्त्र क्या है, किसका ये बोलते हैं कि तपस्या को भंग करने के लिए। माता जी तो तुरंत उनका नाम भी बता दिया, राइट, हनी ट्रैप। पॉलिटिशियंस भी आज उसे किसको भी करना है तो तुरंत हनी ट्रैप डाल देते हैं, उसका भी पोजीशन को स्कैम वैम में कुछ पछता नहीं, हनी ट्रैप पकड़ लिया, रेड हैंड उसको पकड़ लिया, हनी ट्रैप। ये परंपरा से आया हुआ है इंद्र जी से।
तो तुरंत बोलते अच्छा भेजो, इससे बड़ा अस्त्र कुछ भी नहीं है, मेरा वज्र भी कुछ नहीं है। तुरंत कामदेव को भेजते हैं, जाके उसका तपस्या भंग कर दो। और कामदेव अपने पूरे जितना भी पूरा शक्ति है और जितने भी अप्सरा है सभी के साथ चले जाते हैं। और जब वही बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, बोलते हैं कामदेव का एक बाण में सचमुच ये हम जैसे व्यक्ति को तो एकदम बोलते कि विजिलेंट, बहुत हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। एक कामदेव का बाण अगर छूट गया बोलते बेहाल हो जाएंगे कितना भी 16 माला हो जो भी है। इसलिए बोलते मदन मोहना, वो मदन मोहन की जो आशीर्वाद जो ये बताते कि जो कामदेव को जो प्राप्त उनको भी प्राप्त किए, वो मोहन मदन मोहन का जो शरणागति में गए तभी वो कामदेव से बच सकता है, नहीं तो हमारी कोई क्षमता नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। काम क्रोध लोभ ये बोलते कि 6 अनर्थ कितने भी हमारे हृदय में वो निकालने के लिए बहुत मुश्किल है। तो यही कामदेव अपना जब बाण निकाल के छोड़ते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी एकदम घायल हो जाते हैं, उनके जो अस्त व्यस्त हो जाता है, उनके जो विचार विमर्श एकदम बेहाल हो जाता है, ध्यान एकदम किधर हट जाता है। तो वही जो बाण उठा के जब वो नर नारायण की तरफ छोड़ते हैं, तभी नारायण जब देखते कि कामदेव अपने पूरे अप्सराओं के साथ नाच रहे, पूरा बोलते थे कि पूरे जो वातावरण को एक स्वर्ग बना दिए थे, अलग ही नंदनंदन की गार्डन और पूरा उसका जो सुगंध है वो सब। तो ये देख के नारायण अपने आंखों को खोल दिए थे। हालांकि आपने शास्त्र में सुना होगा, जब विश्वामित्र के सामने जब इंद्रदेव ने मेनका को भेजा था, तब काम के वजह से वो निकल गए, उनका पूरा बता दें कि तपस्या भंग हो गई थी। और उसके बाद कितने 1000 साल के बाद जब उनको पता चला यहाँ मेरा कारण था ये काम वासना, वापस मैं तपस्या करता हूँ। वापस 1000 साल जब तपस्या कर किए, तो वापस जब इंद्रदेव ने किसको भेजा था? रंभा को भेजा था। और जब रंभा को जब विश्वामित्र देखे तो उनको याद आ गया, लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक किया था। कामत क्रोधो विजायते, काम के बाद क्रोध जो अनर्थ निकलता है, और तुरंत वो क्रोध की वजह से उन्होंने रंभा को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, या जो भी है अलग प्रकार श्राप दे देते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। तो जब कामदेव ने नारायण की तरफ, वो नर नारायण ऋषि की तरफ वो बाण भेजे, तो नारायण जब आँख खोलते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता है। हालांकि काम वासना तो भगवान के नीचे है, उनके हृदय में उन्होंने पूरा कैप्चर कर चुका है। उनके सामने क्या हो सकता है? मदन मोहन के सामने कितना भी कामदेव मदन का जो बाण कितना भी छोड़े, मोहन के सामने क्या मदन का क्या चलेगा? तो जैसे उन्होंने आँख खोले तो कामदेव को पता चला मेरा लगी वाट, बाप रे, इनको तो कोई फर्क लगता है आज तो मेरा वाट बचने वाला ही है। तो नारायण उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने लुक्ड द आईज ऑफ कंपैशन, करुणा की आंखों से देखा और हंसने लगे। वो जोर जोर से हंसने लगे। बोलो डरो मत, क्योंकि देखिए ये एक भगवान का गुण है, कंपैशन। ये करुणा एक भगवान की, करुणाकर भगवान का एक नाम है करुणाकर। करुणाकर मीन्स द मोस्ट मर्सीफुल वन। वो किसी से गुस्से में किसी को भस्म करने के लिए नहीं लिए थे। करुणाकर, वो हमारी मूर्खता के ऊपर हंसते हैं। हम सोचे कि भगवान को उल्लू बना देंगे, पर भगवान ही हंसने लगे।
और उसके बाद जब पता चला मैंने गलती किया तो उसके बाद भगवान के गुस्से के ऊपर, अरे आज हो गया मेरा हालत बेहाल हो गया, मैं ही बेहाल हो गया, हम डरने लगते। इसलिए एक ज्ञानी ने एक शब्द लिया था, आई डोंट वॉन्ट टू वर्शिप द लॉर्ड ऑफ फियर, आई वॉन्ट टू वर्शिप द लॉर्ड ऑफ लव। मैं भगवान की इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं कि कल भगवान मुझे बता दी कि उनकी जो वज्र से मुझे मारने वाले हैं, या मुझे नरक में मेरे को जन्म मिलेगा, या इसलिए मैं कल में जो कुंभा को जो भी जितने भी नरक है, या मैं नीचे पशु पक्षु में जन्म लूंगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ आराधना के लिए, भगवान के डर की वजह से नहीं कर रहा हूँ। और भगवान नहीं भी चाहते, वो न चाहते हैं मुझसे डर के भक्ति मत करो। माता पिता की प्रेम बच्चा इसलिए नहीं कर रहा, अरे माता पिता से प्रेम नहीं तो कल खाना नहीं मिलेगा, अरे वो डर, बंदूक रख के कोई भक्ति नहीं करता है। चलो मुझसे प्रेम करो, लव मी, इज दैट लव? वो लव नहीं है। इसलिए वो स्टेटमेंट है, आई डोंट वॉन्ट टू लव द लॉर्ड विद द आयरन रॉड इन हिज हैंड। पूजा करते हो कि नहीं? मिलेगा एक झापड़। ये क्या है? वो अगर हनुमान जी के मंदिर में नहीं आया, रोज शनिवार का आना ही पड़ेगा, और नहीं आया तो कल मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये एक्सीडेंट होगा। इज दैट द पर्पस ऑफ डिवोशन? क्या इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं? और नारियल चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाया तो ये तो ट्रेडिंग हुआ। मैं आपको ये दिया, आप मुझे क्या देंगे? मैंने नहीं दिया इसलिए आपने नहीं दिया, इस मनोकामना। इसलिए नर नारायण एकदम बोले कि डोंट वरी, गलती तुमने किया है, माता पिता की वो से, अरे बच्चा गलती करता है पर पेरेंट्स का ड्यूटी रहता है टू करेक्ट। अगर वो डर के वजह से रहेगा तो कितना सा भक्ति, कितना प्रेम कर सकता है? कोई भी व्यक्ति डर से प्रेम नहीं होता है। इसलिए भगवान और उनके भक्त का एक नेचर है, बहुत करुणा करा, बहुत करुणा है, वेरी कंपैशनेट। सिर्फ उसकी गलती को देख के उसका गलती को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। गलती को सुधारना महत्व है। यही जो आज हम नाम जाप करते हैं, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। जब वही वैश्य, आपने सुना होगा, जब रामचंद्र खान उनको बोलते जाके उनका हनी ट्रैप डाल के उनका जाप को भंग कर दो, बहुत फेमस हो रहा है, तब हरिदास ठाकुर को पता था क्या आने वाला है, पर वो निकले नहीं। अगर हम वो स्थान में, अच्छा वो बेच रहा है, आज ही मैं खाली करके जाता, ही वेटेड, उन्होंने रुका। क्यों रुके? क्योंकि उनको पता था एक जीव वैश्य के रूप में आने वाली है। वन जीवात्मा इज गोइंग टू कम विद अल्टीरियर मोटिव। बेचारा उसको ज्ञान नहीं है, आई एम सपोज टू डिलीवर द लिविंग एंटिटी। उसका पाप को, डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। व्यक्ति को उसको ठुकराओ मत। व्यक्ति की जो तुच्छ व्यवहार है उसके प्रति हमें ईर्ष्या होना चाहिए, उसके प्रति घृणा होना चाहिए। डोंट हेट द सिन, डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। गलती सबसे होता है, पर गलती को सुधार सकते हैं, वो महत्व है। हरिदास ठाकुर वही जगह पे 3 बार बैठे, आप बैठिए, यू सिट डाउन। वो बोले, हरिदास मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, डोंट वरी, यू सिट डाउन। वो तुरंत ये नहीं बोली क्या कर रहे हो, गेट आउट, ये निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं मैं जान, नो, जस्ट सिट डाउन। क्योंकि एक भक्त और भगवान वो आत्मा को देखते हैं, करुणा रूप। ही सीज अ कंपैशन नेचर, हाउ कैन आई सेव दैट लिविंग एंटिटी। और बोली जस्ट सिट डाउन, मेरा ये जाप कर लेता हूँ, उसके बाद में तुम्हारा जो भी इच्छा है मैं पूर्ण करूँगा। और जाप करते 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 उनका एक ही उद्देश्य था, हाउ टू अपलिफ्ट दैट लिविंग एंटिटी। खुद का भी अपने ये बचा लिए और उसके बाद वो आत्मा को भी बचा लिए। और 3 दिन के बाद जो वो वैश्य को पता चलता है, वो जाके चरण स्पर्श करती है, नामाचार्य देव मुझे क्षमा करो, मेरा उद्देश्य अलग था। यही कथा इवन तुकाराम महाराज के भी आता है। तुकाराम महाराज के सामने एक वैश्य आती है, उनका ये करें, और तुरंत उनको पता चलती है इनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। और जब हरिदास ठाकुर को पता चलता है, उनको वो बताते हैं, मुझे पता था तुम क्यों आए हो, पर सिर्फ तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं रुका था। और तब वो बोलते हैं, मुझे क्या इंस्ट्रक्शन है? बोलते आज से तुम ये आश्रम में तुम रहो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
और मैं 3 दिन से मैं तुम्हें सिखा वही नाम का अभ्यास करो, देन योर हार्ट विल बी प्यूरिफाइड, तभी अनर्थ निकलेगा। उसी तरह नारायण जब उन्होंने देखा ये कामदेव आकर एक बाण देते, वो देखे करुणा के रूप में हंसने लगते हैं, बोले डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हें कौन भेजा है और तुम्हारा उद्देश्य भी पता है। आप लोग आने के वजह से मेरा आश्रम का एकदम शुद्ध हो चुका है। देखिए ये एक अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, उसको दुश्मन के रूप से नहीं बोलता है। ये नहीं बोल के तुमने पूरा मेरा आश्रम का हालत खराब कर दिया, शी तुम्हारा सोच क्या है। आप लोग जैसे व्यक्ति स्वर्ग से उतरे हो, मेरा आश्रम का बोलते कि शौन और बढ़ गया, इसलिए मुझे आपके लिए सेवा करना चाहिए। आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। और उसके बाद कामदेव को पता चलता है मैंने गलती किया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, और वो स्तुति करने लगते हैं, भगवान आपसे उत्तम कौन है, आप हमारे ऊपर करुणा रख कर भी आपने हमें माफ़ कर दिया, आपसे उत्तम कौन है। तभी स्तुति सुनते 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 भगवान ने अपने जो जंघे को सिर्फ 3 बार ऐसे पीटा, और तुरंत आसमान में, सोच लीजिए नारायण देव का शक्ति क्या है, पूरे आसमान में उनके सोच में से हजारों अप्सरा, लाखों गुण सौंदर्य, जितने अप्सरा कामदेव लेके आए थे उसे लाखों गुण उत्तम थे। और जब ये अप्सरा ऊपर देखते हैं, बताते कि उनकी सौंदर्य उनके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए भगवान की व्हाट इज अ मैग्नानिमिटी ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ एक पीटने से ही कैन क्रिएट सो मेनी अप्सरस। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, आप लोग ने देखा होगा मिठाई का दुकान है ना, मिठाई की दुकान में जो मिष्ठान भंडार बनाता है वो कभी बैठ के मिठाई खाता ही नहीं है। कौन खाएगा, रोज तो देखता हूँ। उसमें बड़ी बात क्या है, हलवा पूरी, मिष्ठा, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो उसके सामने रख दिया तो यार छोड़ो यार, ये मैं आप लोग चाहिए तो तुम फ्री में लेके जाओ मुझे कोई, बिकॉज उसके हाथों में जादू है, वो कभी भी बना के खा सकता है, वो थोड़ी उसके पीछे भागेगा। ये एक भौतिक उदाहरण है। भगवान ये सब स्त्रियों के पीछे भागने के लिए एक झपके से उनको क्रिएट कर सकता है, और वो क्या लाखों गुना मच बेटर, क्योंकि वो ही सौंदर्य के सागर है, सौंदर्य के सागर है, उनसे क्या नहीं निकलता है। ये मिठाई के पीछे मैं भागने वाला हूँ क्या, ये तुम्हारे लिए मैं बनाया, चाहिए तो ले लो। एक झपकी से मैं उतना क्रिएट कर सकता हूँ। और ये अप्सरा और मदन जब ऊपर देखते हैं, माय गॉड, सभी अप्सरा अपने एक दूसरे को, तुम तो कुछ भी नहीं हो, यू आर लाइक कॉकरोच, बोलते ना एकदम ये चिपकली या कॉकरोच के सही। व्हाट इज देयर ब्यूटी। हम लोग सोचते हैं आजकल कभी वो रहता ना सेरेमनी का, वर्ल्ड मिस क्राउन, उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अप्सरा, ये देवलोक के अप्सरा के सामने कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट द लॉर्ड्स क्रिएशन। सोच लीजिए हाउ, ये निंदा नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये सभी लोग के लिए, ये माताओं लोग के लिए और पुरुष लोग के लिए भी। व्हाट इज अ ब्यूटी, ये क्या ब्यूटी है, व्हाट इज गॉड्स क्रिएशन। वो एक सॉन्ग आपने सुना होगा, मैं जब छोटा था बॉलीवुड में बहुत है, तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं तुम्हारा तारीफ नहीं करना चाहिए, तारीफ करूं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये जो सौंदर्य तुमको बनाया, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट हु इज अ क्रिएटर, वो तो इससे भी उत्तम होना चाहिए ना। जिसके पास सौंदर्य के सब गुण है, सब लक्षण है, वही व्यक्ति दूसरे को सौंदर्य दे सकता है ना। सो तारीफ करना उसकी जो जिसने तुम्हें बनाया है। हम मूर्खता ना हम देखते कि अरे हाउ हैंडसम आई एम, नो वन। ये तो मूर्खता है। नारायण देव सिर उठा के देखे और सभी लोग एक दूसरे से लज्जित होके मुंह छिपाने लगे, लज्जित होके, माय लॉर्ड
हम कौन है, हमारा सौंदर्य एक दूसरे के डैजलिंग ब्यूटी, हजारों, एक नहीं हजारों, और उसके बाद और उनको शर्मिंदा और उनको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, इसमें से हजारों में से तुम किसको एक को चुन के लेके जा सकते हो, तुम्हारे लिए इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, ले लो तुम्हारा ये जो अप्सरा कुछ नहीं है, इसमें से किसको एक को ले लो, टेक वन। हम जैसे लोग सबको लेकर जाते थे, वाई वन, नो ओनली वन, टेक वन, क्योंकि एक भी बस हो गया है, ये मेरी एनर्जी है, दिस इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट एनर्जी ऑफ माइंड। और तभी कामदेव भगवान का स्तुति करते, ओम बोल के भगवान को केंद्र रख के उन्होंने एक अप्सरा को सिलेक्ट किया, और वो कौन सी थी? Who is considered the damsel of heavenly kingdom? स्वर्ग में जब अप्सराओं का नाम लिया जाता है, कौन सी आती है पहला शब्दों में? उर्वशी। उर्वशी भगवान का एक छोटा सा किंग, उर्वशी को ले। आज भी जब बोलते हेवनली किंगडम, इंद्र के सामने उर्वशी इज द टॉप मोस्ट, भगवान उसमें से उर्वशी को लेके जाते हैं। और इतनी बता दी कि एकदम लज्जापूर्वक भगवान को कामदेव दंडवत दे के, और बाकी सभी अप्सरा झुक के उर्वशी को सामने रख के उनके पीछे चले जाते हैं। और जब इंद्रलोक में आ जाते हैं तो इंद्र बोले, हो गया क्या, ये देखो, ये तुम्हारी जितनी, ये कौन है, माय गॉड, लगता है तुमने सफल किया है। सफल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नर नारायण के सामने उसके तरफ देखो भी मत, वो भगवान के स्वयं अवतार है। उन्होंने सिर्फ अपनी झपकी के द्वारा से उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, ये लो। इंद्रदेव एकदम विचलित हो जाते, तभी उनको पता चलता है कि क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ तपस्या। मैंने सोचा मेरे अपने इसके, उनको कोई इसके के पीछे कुछ भी नहीं है, उनको तुम्हारे दौलत के पीछे नहीं है, उनको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक भगवान की जो चिंतन है, ये आध्यात्मिक के लाखों, पता नहीं करोड़ों और अनगिनत प्रेम है उसमें। वो ये स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है, ये कुछ भी नहीं है। और तब इंद्रदेव एकदम लज्जापूर्वक एकदम ये बताते कि फिर भी उनको डरता, लगता है भगवान मुझे अभी सबक सिखाएंगे। दिस इज़ वॉट मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी। भौतिक आचरण ये लोग ऐसे ही देखते हैं, अभी क्या आने वाला है, मैंने कुछ तो गलती किया, दिस इज स्टुपिडिटी। इसलिए भगवान नर नारायण के रूप में ये सिखाना चाहते थे कि जो व्यक्ति भगवान को केंद्र करके जब भगवान के ऊपर ध्यान करके तपस्या करता है, तो जितने भी टेम्पटेशंस भी आ जाए, कितनी भी इंद्र तृप्ति की इच्छा आ जाए, भगवान की शक्ति जब रहेगा तो कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता है। द पावर ऑफ द होली नेम इज सो पावरफुल। जो व्यक्ति भगवान का नाम का शरणागति में जाता है सिंसियरली, वो व्यक्ति को बताते कि किसी भी इस दुनिया की कितनी भी आनंद देने वाली तृप्ति हो, उसको कुछ भी विचलित नहीं होता है। वो जिस तरफ एक सांप के जो कितने भी नशीली सांप हो, अगर उसकी जो दांत को निकाल दिया जाता है तो कितने भी विषैली सांप हो, वो कुछ डसने वाला नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की शरणागति में गया है, मन कितना भी अविचलित हो, उसको कंट्रोल में लाना बहुत सुलभ है। जो व्यक्ति हैज टेकन द शेल्टर, जिसने शरणागति लिया है, जो व्यक्ति ने शरणागति लिया है भगवान के नाम में, ऐसे इतिहास में ऐसे बहुत सारे कथा है। हरिदास ठाकुर का जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी कथा है, और हाल ही में भी बहुत सारे कथा हुआ है, पर उसके लिए समय नहीं है। और एक कथा है, उद्देश्यता, नर नारायण की उद्देश्यता। क्या बोला मैंने? एक उद्देश्यता,
साधु परित्राणाय साधु संग, साधु लोगों, विनाशाय च दुष्कृता, विनाशों का दुष्कृता करने के लिए। तो वो कौन विनाश था, राक्षस था, जिसका हाँ वो दुष्कृता करना चाहते थे। ये कथा मैं सिर्फ समरी में बोलता हूँ, चाहता हूँ कि इस कथा को अगले मंगलवार में बताऊँ, क्योंकि बताते हैं भगवान नर नारायण त्रेता युग में अवतार लिए थे। और मैंने बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एक चैप्टर है जिसमें अर्जुन बताते हैं कि भगवान आप बोलते हैं कि आपने ये ज्ञान पहले भी किसको दिया था, और सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव के बाद आपने इक्ष्वाकु, पर मुझे तो आपको कैसा याद है, मुझे तो मेरा पहला जन्म याद नहीं है। तभी भगवान बताते अर्जुन मैं नारायण हूं और तुम नर हो। कितने जन्म हम लोग ने दोनों लिया था, फर्क एक ही है, मैं याद रखा हूं तुमको याद नहीं है। तो यही नर नारायण जब त्रेता युग में नर नारायण के रूप में आए थे, यही नर नारायण जब द्वापर युग आ जाता है तो उस समय केशव और अर्जुन के रूप में आते हैं। वही पार्थ, वही सारथी, वही वसुदेव, वही प्रता, वही दो रूप में आते हैं, कौन्तेय और वासुदेव कृष्ण। और ये क्यों आते हैं, और इसके साथ दूसरा कौन व्यक्ति आता है जिसके वजह से नर नारायण को वापस द्वापर युग में अवतार लेना पड़ा, और ये था वही राक्षस। उसका नाम था, उसका पहला नाम सहस्र कवच नहीं है, उसका पहला नाम है उसका पहला नाम है दंभोदभव। दंभोदभव था। ये दंभोदभव एक राक्षस था जो त्रेता युग में लोगों को बताते कि पूरा विनाश करने के लिए अवतार लिया था। वो कथा हम आने वाला मंगलवार में वो चर्चा करेंगे, पर यही उद्देश्य है कि यही नर नारायण वापस एक कारण के वजह से वापस ये राक्षस वापस द्वापर युग में भी आता है, नर नारायण और दंभोदभव। अभी ये आपको गेस करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन है, हु वाज दैट दंभोदभव, या कौन था वो सहस्र कवचा, और क्यों वो सहस्र कवचा वापस द्वापर युग में जन्म लिया था। दिस क्वेश्चन ये गेस अगले मंगलवार में रखते हैं। तब तक आप लोग, आजकल तो गूगल प्रभु में आपको सब पता चलेगा, तो यू कैन ट्राई करके। बेस्ट गूगल प्रभु है शास्त्र, ये शास्त्र इज द बिगेस्ट गूगल प्रभु। तो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के थ्रू से हम बता सकते हैं। तो अगर चाहिए तो महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो तभी आपको पता ये दंभोदभव राक्षस कौन था, उसका नाम सहस्र कवच क्यों पड़ा, अगर सहस्र कवच का था तो उसको वापस द्वापर में क्यों जन्म लेना पड़ा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा। हरे कृष्णा।